हाँ जी, मीडियन पता है? एवरेज। Median is a kind of average, but it is a positional average, है ना? So median is also a positional average, which divides the data into two equal parts. Okay, so if M is the median, so 50% of the observation will be left to M, and 50% of the observation will be on the right side of M. Okay, so if I say, if I have class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, these are the marks of 10 students out of 20. And if you want to find the mean of the marks, average marks, so how can I find summation x by 10? ठीक है, ये तो आपका मेन का फॉर्मूला है. But if you want to find the median value, मतलब वो वाली वैल्यू आपको निकालनी है which lies in the middle, okay, middle of all the observations. तो आप क्या करते हो? See, this is ungrouped data. Okay, this is ungrouped data. तो ungrouped data के लिए आप क्या करेंगे? आप इस सारी observations को you will arrange them in ascending order. Okay, so let me arrange all these observations in the ascending order. It will be 3, then 4, then 5, है ना? 3, 4, 5, then 6, then 8, 9, okay, 10, 11, 11 done, 12 and 15. Okay, तो 12 और 15. अब आपके पास n क्या है? What is your n? N is 10. 10 observations are there, and 10 is an even number. Okay, so whenever n is an even number, so median will be the size of, बताइए, याद है आपको? Median will be the size of mean of, ठीक है, n by 2th and next observation. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट इसलिए लिखती हूँ क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चे, जब आप n by 2 plus 1 करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स n plus 1 by 2 में उसको मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना n by 2 and next. क्लियर? तो आप बताओ आपका जो मीन होगा, तो मीडियन विल बी इन दिस केस, मीडियन विल बी द साइज ऑफ, बोलो, इट विल बी मीन ऑफ 10 by 2, है ना? बाद में हम निकालेंगे मीन ऑफ 10 by 2th एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो 10 by 2 मीन्स 5th. ओके, तो 5th और 6th का मीन. क्लियर? So that will be the mean of, it will be the size of mean of, so that will be size of mean of 5th and 6th observation. ठीक है, तो आपकी देखो 5th और 6th observation इसमें कौन है बताएं मुझे काउंट करके. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5th और 6th ये हैं दोनों, है ना? तो 8 plus 9 by 2. Okay, so that will be equal to 8 plus 9 by 2. 8 plus 9 by 2 will be what? 8.5. हाँ जी, 8.5 is the median. ठीक है, so 8.5 is the median marks you can say, है ना? तो इसका मतलब ये है कि 8.5, 50% of the class is having marks below 8.5 and 50% of the class is having marks above 8.5. ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखेंगे आप, है ना? अब ये देखो मीडियन की क्या एक ड्रॉबैक है, आप ये बताओ क्या हो सकती है? जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन में हम वी कंसिडर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, है ना? हम सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं क्योंकि हम सबका सम करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं. सो मीन कंसिडर्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस, बट व्हाट मीडियन डज, है ना? तो मीडियन सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहा है? नहीं कर रहा, है ना? सो मीडियन इज जनरली द बेस्ट एवरेज इन ओपन एंडेड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशंस.
Okay. So median is also the positional average. सिर्फ आपको ये पता चल सकता है median से कि 50% of the observation इस value से कम है, 50% of the observations value से ज़्यादा है. Suppose we talk about the travel time. If we have 100 employees in our industry, ठीक है, अगर आपके पास 100 employees हैं और आपको they have a time from 9 a.m. to 5 p.m. Okay, and they give you the I mean their traveling hours. Okay, how much they it takes to travel. Okay, daily to them for reaching to office or for reaching to home. Okay, so if you want to calculate the median value, okay, कि आप ये देख लोगे कि median value क्या है. उस मीडियन से आप देख लोगे कि कितने 50% लोग कितने टाइम के पहले घर पहुंच जाते हैं और 50% कितने उस टाइम के बाद पहुंचते हैं. ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका मीडियन टाइम है. ठीक है, बताओ बात समझ आती है. देखो ये 100 एम्प्लॉयज हैं, तो ये कहता है कि मुझे डेली कम्यूट करने में इट टेक्स 5 आवर्स. ठीक है, एंड समबडी सेज 4 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स. तो आपको ये आवर्स में आपको पूरा डेटा गिवन है. एंड इफ यू फाइंड द एवरेज मार्क्स, एवरेज टाइम, तो वो तो आपको एक ऑन एन एवरेज टाइम पता चलेगा, है ना. तो अगर आपने देखा कि 50% ऑफ योर एम्प्लॉयज आर रीचिंग, सपोज 2 घंटे के, 2 घंटे, एम इज मीडियन एंड मीडियन इज 2 आवर्स. तो आपको पता है कि 50% ऑफ एम्प्लॉयज आपके 2 घंटे के पहले पहुंच जाते हैं या 2 घंटे तक पहुंच जाते हैं घर, है ना, या उनका आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम 2 आवर्स है. ठीक है, और 50% का 2 आवर्स से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि m is the median value, so you can decide whether to change the time or not. Class, am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है. देखो, अगर आपके पास you have the timings from 9 to 5 and 100 people, 100 employees report to you that कि उनको घर पहुंचने में, आने जाने में 5 घंटे लगते हैं, किसी को 4 आवर्स, किसी को 2.5 आवर्स, किसी को 3 आवर्स. तो आपने देखा कि अगर मीडियन 2 आवर्स है और 50% ऑफ योर एम्प्लॉयज आर रीचिंग, आई मीन देयर कम्यूटिंग टाइम इज 2 आवर्स. So if you consider that 2 hours to be okay, then you may not need to change the timings. Okay, but if you think कि 2 hours median जो value है, it is 50%, 2 घंटे ज्यादा है, ठीक है, तो you can consider of changing the timings, है ना, जैसे 10 to 6.
सपोज उस टाइम पे अगर ट्रैफिक नहीं है, उस टाइम पे मोर बसेज आर अवेलेबल और मोर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आर अवेलेबल, तो आप यू कैन कंसिडर फॉर चेंजिंग द टाइमिंग्स आल्सो। ठीक है। एंड मीडियन का एक ही ड्रॉबैक है कि मीडियन आपका सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर नहीं करती है ना। जैसे अब इसने 5th और 6th ऑब्जर्वेशन को लिया और उसका मीन बता के मीडियन मार्क्स पता चल रहा है यहाँ से आपको, क्योंकि वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे तो 8.5 नंबर अगर है तो 50% ऑफ द क्लास इज हैविंग मार्क्स अप टू 8.5 एंड 50% इज हैविंग मोर देन 8.5। ठीक है। और इसका एक यूज है कि इट इज बेस्ट एवरेज इन ओपन एंडेड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, ठीक है। now suppose you have grouped data, ये तो अनग्रुप डेटा का था, लेकिन अनग्रुप डेटा में if n is odd, ठीक है, so median will be the size of n plus 1 by 2th observation। ठीक है, तो अगर n odd होगा, जैसे 7 है तो 7 plus 1 by 2 8। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में we have 53 students and I want to find the median marks of T2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे मार्क्स को वी विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जो आपके मीडियन मार्क्स होगा 53 प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो जिसके भी मार्क्स 54 बाय 2 है ना, जो भी 27th ऑब्जर्वेशन होगी T2 के मार्क्स की, वो आपकी मीडियन होगी। मतलब 50% ऑफ द क्लास इज हैविंग marks below that median value and 50% of the class is having marks more than that median value। ठीक है, clear। but if you have group data, अगर आपके पास grouped data है तो हम median कैसे find out करते हैं। ठीक है, so if you have group data, तो in that case median is always the size of n by 2th observation। ठीक है, और जब आप ये मीडियन की क्लास को लोकेट कर लेते हैं, इसका साइज फाइंड आउट कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला L प्लस n by 2 माइनस PCF by F into H। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे इसको। ठीक है, H इज ऑफ द स्टेप साइज, n by 2, n आपको पता है, L is the lower limit of the median class, PCF is the cumulative frequency of the class preceding the median class, तभी PCF है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा के केस में हाउ विल यू फाइंड मीडियन। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव 1500 वर्कर्स वर्किंग इन आवर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। ओके, एंड देयर एज इज गिवन। ठीक है, सो टोटल यू हैव 1500 workers, okay, working in your industrial establishment, and their age is given। Okay, age beta is given 18 to 22, 22 to 26, 26 to 30, 30 to 34, 34 to 38, okay, 38 to 42, okay, 42 to 46, 46 to 50, 50 to 54, and 54 to 58. Okay, this is their age group given है, and the number of workers is also given। okay, number of workers। ठीक है, तो 18 से 22 की एज वाले 120 वर्कर्स हैं। here you have 125, 280, 260, 155, 184, 162, 86, 75 और 53।
इसका टोटल कितना है 1500 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1500 वर्कर्स आपको बोला है, ठीक है. So this is age you can consider as variable and number of workers is frequency. Okay, कौन सी मैम? यहाँ नहीं बैठती, फर्स्ट फ्लोर. ठीक है. So you have to first of all find the cumulative frequency. Cumulative बताएं quickly please. देखो ये होगा 120, ठीक है, विजिबल है ना? 120 इनको ऐड करके बताएंगे what will be the cumulative frequency. Will it be 245? प्लीज साथ साथ चेक करते रहना कैलकुलेशंस. 245 and 280. Is it 525? क्लास आवाज आ रही है? हाँ निशांत, ठीक है. इसका 785 and this will be 940. आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्जाम में, ओके, एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यू हैव टू परचेज. इफ यू डोंट हैव तो प्लीज परचेज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि इसके बाद जो आपका यूनिट है उसमें यू विल बी नीडिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ठीक है. तो इसमें भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, ओके. और कैलकुलेटर यूज करने की आदत भी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि फिर हाथ नहीं चलता कैलकुलेटर में, कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं और फिर पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है. दिस विल बी 1286. Yes, ma'am. प्लीज, ठीक है. दिस इज 1372. दिस इज 1447 एंड दिस विल बी 1500, ठीक है. ये चेक करना है, ये तो होगा ही 1500, ये आना भी चाहिए, ठीक है. तो n आपके पास 1500 है एंड दिस इज द ग्रुप डेटा, ओके. सो मीडियन विल बी द साइज ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. ठीक है, तो मीडियन विल बी द साइज ऑफ n by 2th, means size of 1500 by 2, ठीक है. तो 1500 by 2th ऑब्जर्वेशन means 750, है ना. It will be the size of 750th observation. अब ये बताओ 750 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में कौन सी वैल्यू कवर कर रही है, बताओ देखकर. देखो 525 will not cover 750. 785 है ना. 785 की क्लास को we will highlight, ठीक है. तो हमारी मीडियन क्लास है, therefore our median class is 30 to 34. So lower limit of the median class 30. Frequency of the median class is 260. PCF, cumulative frequency of the class preceding the median class, ठीक है. तो PCF is 525 and H is 4, ठीक है. इसका क्लास साइज है सबका, तो विड्थ ऑफ द इंटरवल या आप क्लास साइज की बात कर सकते हो, ठीक है. तो ये 4 है, ठीक है. सारी वैल्यूज हैं आपके पास. अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो व्हाट विल बी आवर मीडियन? मीडियन विल बी इक्वल टू L प्लस n by 2 minus PCF अपॉन F into H, ठीक है. तो L की वैल्यू है 30 प्लस n by 2 is 750 minus PCF is 525. Frequency of the class is 260 into H. H is 4. And tell me the answer, please. What is the median age? मैम H4 कैसे आएगा? ये स्टेप साइज देखो ना इसका, इंटरवल, साइज ऑफ द इंटरवल 18 to 20 to 4 होता है ना, 18 और 4 इसका डिफरेंस. इसका 33 होगा मैम, 33.4. 30 आंसर इज 33 पॉइंट कितना बोल रहे हो? 46.
46. यस यस, ठीक है। तो देखो मीडियन एज ऑफ 1500 एम्प्लॉयज इज 33.46, मतलब 50% ऑफ द एम्प्लॉयज आर हैविंग एज अप टू 33.46। ठीक है, देखो मिनिमम एज 18 साल से आपने एम्प्लॉयज को ठीक है एम्प्लॉय कर रहे हो, तो 18 साल अगर आपकी मिनिमम एज है तो 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 18 से 33.46 है, और 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 33.46 टू 58 years of age. ठीक है क्लास, इज दिस ओके? Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियन। ओके, अब हम स्टार्ट, मीडियन क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। मीडियन में अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक नाउ। वो भी पोजीशनल एवरेजेस ही हैं। ठीक है, एक मिनट क्लास। मीडियन का और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है? सिंपल है ना? ठीक है, इसी तरह से आपको अगर कोई लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन है उसमें भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं और भी अभी इसके क्वेश्चंस कराती हूँ। देखो नेक्स्ट वी हैव मोर पोजीशनल एवरेजेस, दोज आर क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसिल्स। परसेंटाइल्स एंड डेसिल्स। ठीक है, तो मीडियन कौन सी पोजीशनल एवरेज थी? which divides the data into two equal parts, है ना? दो इक्वल पार्ट्स में आपका डेटा डिवाइड हो जाता है, तो वो आपकी मीडियन होती है। ठीक है, दैट यू डिनोट बाय एम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स आर डिनोटेड बाय क्यूआईज, परसेंटाइल पीआईज एंड डेसिल डीआईज। तो जो आपकी क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स देखो, you suppose you have this data and this is your first quartile, this is your second quartile, क्लास आवाज आ रही है? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ से नहीं है। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके थैंक यू। ठीक है, एक मिनट मैं फिर से रीशेयर करती हूँ। ओके, इज इट विजिबल नाउ? है ना, अब तो दिख रही होगी। ठीक है, तो Q1, Q2 और Q3 हैं, तीन है क्वार्टाइल्स। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4, है ना? ठीक है, सो these quartiles divide the data into 4 equal parts, है ना? अगर आप Q2 की बात करते हैं तो देखो Q2 ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डेटा को, तो इसका मतलब Q2 विल बी सेम एज मीडियन, है ना? तो Q2 तो मीडियन ही है। लेकिन Q1 क्या है? Q1 divides the data into 1:3 ratio and Q3 divides the data into 3:1 ratio, है ना? और Q2 divides 1:1, तो Q2 तो आपकी मीडियन ही है।
ठीक है, Q1 डिवाइड करती है 1:3 के रेशो में, Q3 डिवाइड करता है 3:1 के रेशो में, क्योंकि Q3 के पहले देखो कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, देखो ये 50% है, ये भी 50% है, लेकिन Q1 कैसे डिवाइड कर रहा है, ये 25% है और ये पूरा 75% है। तो Q1 जो पोजिशनल एवरेज है उसके बिलो 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी और Q1 के अबव 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन होंगी। तो अगर मैं आपकी क्लास के मार्क्स का फर्स्ट क्वार्टाइल देखूं, तो अगर मैं देखना चाहती हूँ कि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स कितनी वैल्यू तक जा रहे हैं, है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि 70, या फिर मैं थर्ड क्वार्टाइल कंसिडर करती हूँ, तो हम ये देख सकते हैं कि 75% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हमारा Q3 का वैल्यू, आपके T2 के मार्क्स का Q3 15 नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार T2 में Q3 थर्ड क्वार्टाइल 15 मार्क्स है, ठीक है, दैट मींस 75% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ CSE 4B आर हैविंग मार्क्स अप टू 15 ओनली, है ना, और सिर्फ 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वार्टाइल्स, दे आर आल्सो द पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। Q2 तो आपकी मीडियन ही होती है, ठीक है, Q3 थर्ड क्वार्टाइल, Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ हाउ टू फाइंड देम, है ना, अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपके पास you are given a data and you have to find the first quartile, second quartile और third quartile, second quartile तो आपकी मीडियन ही होती है, ठीक है, तो आप उसमें you can easily find out the quartiles using the formula, ठीक है। तो let me write the formula for the quartiles. Quartile is equal to L plus IN/4, ये मैं बताऊंगी अभी, minus PCF/F into H, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपका देखो ये IN/4 का क्या मतलब है, तो आप जब I की वैल्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल होगी, सेकंड क्वार्टाइल एंड दैट विल बी नेक्स्ट विल बी द थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 विल बी L plus N/4 minus PCF/F into H, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वार्टाइल इज अगेन सेम एज मीडियन, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, PCF/F into H, ठीक है। एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3, ठीक है, सो योर Q3 विल बी L plus, बोलो 3N/4, है ना, देखो जब हमने यहाँ 2N/4 करा था तभी N/2 बन गया, वहाँ 1N/4 था, ठीक है, तो वो N/4 हो जाता है, इसलिए minus PCF/F into H. H आपका again the step size, PCF is the cumulative frequency of the class preceding the Q1 class, ठीक है, और यहाँ पर PCF होगा cumulative frequency of the class preceding third quartile, class of the third quartile, ठीक है। लेकिन आप लोकेट कैसे करोगे, क्लासेस कैसे लोकेट करोगे, so that will be the size of IN/4th observation, वैसे ही जैसे आप उसमें करते थे, है ना। तो जब आपको क्लास लोकेट करनी होगी तो आप यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ IN/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यहाँ से हम लोकेट कर लेंगे। तो मैं अभी एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर हम परसेंटाइल डिसाइल्स के फॉर्मूले करते हैं, ठीक है। देखो वी हैव प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है, so we are given the profits of some companies, ठीक है, 100 companies are there, so we have 100 companies, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट्स दिए हैं, प्रॉफिट्स आर गिवन इन lakhs of rupees, ठीक है, and we have number of companies, ये भी गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स गिवन, रेंज फॉर प्रॉफिट्स इज 20 to 30 lakhs, ठीक है, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, okay, 80 to 90 and 90 to 100, ठीक है। Number of companies is 4 companies, 8 companies are having profit between 30 to 40 lakhs,
ठीक है, 18, 30, 15, 10, 8 और 7। अब आप इसका टोटल देखो 100 आना चाहिए। अगर टोटल 100 नहीं है सो यू नीड टू चेक योर डेटा अगेन, है ना, ये 100 है। अब हम ये, क्योंकि प्रॉफिट इज द वेरिएबल x and number of companies is called the frequency f, so we have to calculate cumulative frequencies also. So 4, 12, that will be 38, बोलो 68, 83, 93, देखो कोई एरर तो नहीं है मैम 30 नहीं होगा, 12 Sorry. हाँ मैंने एक बीच में मिस कर दिया ना, ओके, so that will be 30, अब 60, बोलो, now next will be 75, है ना, means some people are not sleeping, ठीक है, thank you। 75 कहाँ 45, अब भी गलत है, ठीक तो है, क्यूमुलेटिव देखो मैम 75 के बाद 85 85, then हाँ हाँ, थैंक 93 यू थैंक यू थैंक यू। चलो ओवर राइटिंग हो गई बट आई थिंक रीडेबल है ना। फिर क्या होगा 93 93. और फिर 100, ठीक है ठीक है अभी, ठीक है थैंक यू। ओके देखो अगर मैं मीडियन निकालना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनी मीडियन वैल्यू क्या है, ठीक है, 50% ऑफ द कंपनीज कितने प्रॉफिट पे हैं और 50% ऑफ द कंपनीज कितने पे हैं, तो हम मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। बट वी आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सबसे पहले Q1 फाइंड आउट करूं तो Q1 विल बी द साइज ऑफ 1n/4, मतलब n/4 है ना, n/4 ऑब्जर्वेशन, so that will be the size of 100/4, है ना, 100/4 25 होता है, 25 और 25 को कवर करेगा 30, है ना, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारी जो क्लास है, क्लास ऑफ Q1 इज 40 to 50, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। बट वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब 25% कंपनीज का प्रॉफिट उस वैल्यू से कम होगा और 75% ऑफ द कंपनीज विल बी हैविंग प्रॉफिट मोर देन दैट वैल्यू, है ना। तो ये हम निकाल चुके हैं, देखो लोअर लिमिट होगी 40, ठीक है, स्टेप साइज 10 ही है, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 18, एफ हो जाएगा 18 और पीसीएफ विल बी 12, ठीक है, तो पीसीएफ 12 है, ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं। तो अब हम वैल्यू Q1 की लिखते हैं, तो Q1 विल बी L प्लस I n/4, तो 1n/4 तो 1n/4 माइनस PCF बाय F इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, सो दिस इज 40, n/4 इज 25, PCF 12, ओ ये माइनस है, divided by F frequency 18 and H is 10, ठीक है। तो अब बताएं आंसर Q1 क्या होगा, it will be Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल 47. आई डोंट नो, आप बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो, 47.22. 40 ओके, 47.22, इसका मतलब क्या है कि 25% कंपनीज का प्रॉफिट 47.22 lakhs है, अप टू दिस वैल्यू, है ना, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो कंपनीज का प्रॉफिट है, देखो 20 से 2200 लाख दिया है, तो आपकी जो 25% कंपनीज हैं, ये Q1 की वैल्यू है 47.22, मतलब 25% of the companies are having profit up to 47.22 and 75% of the companies are having profit more than 47.22, more than 47.22 and up to 100 lakh, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं तक ही, है ना, अपर लिमिट यही है हमारी, ठीक है। Q1 क्लियर है आपको। अब जब हम Q3 की बात करेंगे तो Q3 हो जाएगा यहाँ 3n/4 ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, प्लस इट विल बी 3n/4। तो 3n/4 बताओ क्या होगा, 3 इंटू 25 75। अब 75 को कौन कवर करेगा इस टेबल में, 75 खुद है ना, 75 इज कवरिंग दिस वैल्यू। तो ये आपकी हो जाएगी Q3 की क्लास, एंड यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट Q3। कर लेंगे आप Q3 या बताएं, मैं बताऊं उसको भी, बोलो। हाँ जी क्लास हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना, ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स। ठीक है, ये सिंपल है ना। मैम T3 की सिलेबस की बुक भेज देना। हाँ T3 का जो मैंने अभी तक भेजा हुआ है, एक तो मैं अभी चेक करती हूँ, जो नहीं भेजा वो मैं भेज दूंगी अभी। ठीक है, और T3 आपका कंपैरेटिवली इजी है, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है, दिस इज मोर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स टाइप। ठीक है, तो सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं सारी चीजें, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी पूरा एप्लीकेशन है। वैसे उसमें भी था लेकिन बट दैट वाज मोर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो आपके ए और बी सेक्शंस थे दोस वर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल स्टैट्स, एंड जो आपके सी एंड डी है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप साथ साथ सारे फॉर्मूले करेक्टली याद रखो, आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि देखो सारा कैलकुलेटर बेस्ड है, अगर आपने कैलकुलेटर में ठीक से वैल्यू इनपुट नहीं करी, कैलकुलेटर को मोड पे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर होंगे, उसको आपको रेडियन मोड पे सेट करके रखना होगा। क्योंकि आपने मान लीजिए आपके पास 10 नंबर का प्रॉब्लम आया कर्व फिटिंग का, आपने उसमें क्या किया, आपने कर्व फिटिंग में रेडियन मोड, डिग्री मोड यूज कर लिया, पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू कीप आवर ऑल द कैलकुलेशंस इन रेडियन मोड, क्योंकि कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे अलग होती है ना, और 30 रेडियंस पे अलग होती है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे अलग होते हैं, है ना, सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंशियल एंड एवरीथिंग। तो अपने कैलकुलेटर आपको यूज करने आने चाहिए। सीओडी सेक्शन बहुत स्कोरिंग है, और यहीं पर आप अपना पिछला रिकॉर्ड इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आज हो सकता है बेटा क्विज इज रेडी, बट I mean there are some complaints from other students of other sections that it was not a planned test. ठीक है, PT2 का they are saying कि it should be in campus, पता नहीं, I don't know, उनके बहुत सारे issues हैं, तो आज शायद हमारा PT2 का क्विज नहीं होगा। तो अगर आज नहीं होगा तो होगा तो ऑनलाइन मोड में ही, तो हम थर्सडे को जब आप कैंपस में आओगे ना, तो जब आप 2 बजे अवेलेबल होगे कैंपस में, तो तब हम क्विज ले लेंगे, या जिस भी टाइम पर कॉमन आपका स्लॉट होता है 11:30 पे। ठीक है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में होंगे, नेट सबके फोन में चलता है। ठीक है, तब हम उस क्विज को कंडक्ट करा लेंगे। तो आज नहीं होगी क्विज, ठीक है, 12 बजे। ओके, मैं सारे नोट्स अभी भेजूंगी आपको। ठीक है, आई हैव सेट द रिमाइंडर, अभी मैं भेज दूंगी। ठीक है, अब मंडे को आप लोग आ रहे हैं ना सब, यूनिवर्सिटी ट्यूट होगा हमारा एक ग्रुप का, एक की लैब भी होगी। हाँ लैब भी है, ठीक है। ठीक है, मंडे को भी मिलेंगे। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं परसेंटाइल्स। percentiles, ठीक है। so percentiles, what is percentile? Percentile is the values which divides the data into 100 equal parts। ठीक है, अब 100 इक्वल पार्ट से आपको क्या बेनिफिट होगा, ये भी पोजिशनल एवरेज है ना। तो अगर आपके पास डेटा है तो P1 P2 P3 अप टू P99 तभी 100 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, है ना। यहाँ पर P2 होगा, P3 up to so on। P50 will be the value which will be dividing the data into 2 equal parts. So P50 is nothing but the second quartile is nothing but the median। ठीक है, तो P50 तो हमारा मीडियन ही हो जाती है। ओके, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस परसेंटाइल? आपने वो देखा है कैट में, मैट में जो परसेंटाइल्स आती हैं आपकी, है ना। Yes, ma'am.
है ना। तो अगर मान लो कि कैट में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस एग्जाम है सपोज, उसमें 500 बच्चे 1500 बच्चे अगर अपीयर होते हैं, है ना। अब हमने उसमें परसेंटाइल निकाली, अब हमारे पास 1500 बच्चों के मार्क्स थे, हमने उसमें से परसेंटाइल निकाल ली, तो P99 मेरे पास जो मार्क्स की 99 परसेंटाइल के जो मार्क्स हैं, सपोज जितने भी मार्क्स का था एग्जाम, उसमें मेरे पास है 75 आ रहा है, ठीक है। P99 में मतलब मेरे पास जो ये वाला जो 10% ऑब्जर्वेशन है, ये इनके मार्क्स 75 से ज्यादा है ना, 75% से ज्यादा है। फिर हमने क्या किया, वी कंसिडर्ड P80 80th परसेंटाइल, मतलब 80% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगर मेरे पास P80 65 आता है, तो मुझे पता है कि 20% बच्चों के नंबर तो 65% से ज्यादा हैं ही, है ना। So I can relax the criteria and I can invite these 80% these 20% students, है ना, मतलब students having marks more than 65 for getting the admission in our university, है ना. So this is also the positional average, which tells us about the number of observations lying below this value, below the particular percentile, and number of values lying above that particular percentile. ठीक है. तो परसेंटाइल से अगर हम सेम क्वेश्चन में, if we want to find P80, ठीक है, सेम क्वेश्चन में पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है. So what will be the formula for PI? It is again same, L plus. अब ये जो ये वाली टर्म है ना, ये चेंज होगी, सिर्फ PCF वही रहेगा, F वही रहेगा और H भी सेम है. अब यहाँ हो जाएगा IN/100, ठीक है. 100 इसलिए क्योंकि परसेंटाइल है, ठीक है. अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है P80. तो P80 will be I plus 80N/100 minus PCF upon F into H. ठीक है. Now how will you locate the class of P80? So P80 will be defining the size of 80N/100. IN/100 होगा, तो हमने 80N/100 कर दिया. तो 80N/100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है. So that will be the size of 80 into N. कितना था टोटल? It was 100. 100 कंपनीज का डेटा था ना, हाँ 100 था N, ठीक है. यस, और ये भी 100 है, ठीक है. तो 80th ऑब्जर्वेशन का साइज आपको चेक करना है, ठीक है. So this will be the size of 80th ऑब्जर्वेशन. अब हम टेबल में चेक करते हैं कि 80th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है. देखो, आप देखो यहाँ पर इस टेबल में 80 को कौन कवर कर रहा है, बताएं. 85, ठीक है. तो ये तो हो गई हमारी परसेंटाइल की क्लास, ठीक है. तो अब फ्रीक्वेंसी हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई 70, और पीसीएफ हो जाएगी इसकी 75, ठीक है. तो हम P80 निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्या ऑन द राइट हैंड साइड. तो P80 L आपके पास 70 है, ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ 70 प्लस ये होता है 80N/100. तो 80 इंटू 100/100 80 हो जाएगा. PCF 75 है, F 10 है. Yes. तो 75 ये 10 है, H आपके पास 10 ही था. तो व्हाट इज द वैल्यू? 75 आ रहा है शायद, ये देखो, है ना. Yes, ma'am. 75. तो इसका मतलब जो मेरा P80 है, 80th परसेंटाइल इज 75 lakhs. मतलब 80% ऑफ द कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो अप टू 75 lakhs है, लोअर लिमिट में, है ना. लेकिन 20% of the companies are having profit more than 75 lakhs, है ना. यही मतलब है इसका, है ना. बोलो. मतलब आप ये इस डेटा के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो, अगर मेरे पास ये कंपनीज का डेटा है, दिस इज द डेटा फॉर द कंपनीज, है ना. तो हम ये कह रहे हैं कि 75 लाख रुपए आपकी पर P80 है, मतलब 80% of the companies are having profit up to 75 lakhs.
ठीक है, तो 75 लाख तक 80% कंपनीज अर्न करती हैं और 75 लाख से कम भी हो सकता है क्योंकि अप टू है। लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि 20% ऑफ द कंपनीज आर हैविंग प्रॉफिट मोर देन 75 लाख, है ना। ये तो आपको पता चली गया। तो आपको अगर सिर्फ उन्हीं 20, आपको ये पता है कि 20%, 100 का 20% कितना होता है, बोलो। 100 का 20% 20 है ना। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना है इन कंपनीज को, तो आपको 20 कंपनीज लेनी थी। आपने P80 देखा, P80 75 लाख है, तो 75 लाख यू कैन डिसाइड एज द लिमिट टू पार्टिसिपेट इन सम कंपटीशन। ठीक है, आप कह सकते हो कि जिन कंपनीज की एनुअल इनकम 75 लाख से ज्यादा है दे कैन पार्टिसिपेट। और क्योंकि आपको पता है कि 20 तो कंपनीज है ही, है ना, एंड यू नीड 30 पार्टिसिपेंट्स, तो 20 तो आपके अपने हो गए एंड 10 यू कैन इनवाइट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ परसेंटाइल्स हेल्प अस। ठीक है ना। हमें 30 पार्टिसिपेंट चाहिए, 20 हमारे पास अपने हो गए क्योंकि हमें पता है 75 लाख से ज्यादा कंपनीज 20 हैं, तो दे ऑल हैव टू पार्टिसिपेट। तो 20 हमारी अपनी कंपनीज हो गई एंड 10 वी कैन इनवाइट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, परसेंटाइल क्लियर है आप सबको? कर सकते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटाइल, है ना। Yes, ma'am. बोलो, है ना। सिग्निफिकेंस भी सबको क्लियर होगा। नाउ वी टॉक अबाउट डिसाइल्स। ठीक है, सो डिसाइल्स is the position also the positional average, है ना। So tell me what can be deciles? Yes, so deciles will be the values which will be dividing the data into 10 equal parts, है ना। अब 10 पार्ट हो जाएंगे, तो D1 D2 D3 और जो आपका D5 होगा, अच्छा इसमें D3 D4 भी होंगे। मैंने थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनाया, अब देख लेना। 6 7 8 9 और ये D10 होगी, है ना। तो D1 थोड़ा इधर होगा, D2 D3 देख लेना। ठीक है, तो D5 विल बी सेम एज मीडियन क्योंकि D5 भी डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, है ना। तो आपकी मीडियन से कौन कौन कोइंसाइड कर रही हैं, देखो Q2 सेकंड क्वार्टाइल, परसेंटाइल और फिफ्थ डिसाइल, ये सारी मीडियन होती हैं, है ना। अब ये भी पोजिशनल एवरेज है, ये भी आपको पोजीशन से बताएगी, है ना। तो आप DI का फॉर्मूला विल बी L अगेन सेम। अब IN/10 होगा, ठीक है, माइनस PCF/F into H। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड 10th decile, 5th decile, 6th decile, okay, you can find using this formula. अब सेम क्वेश्चन में if you want to find 4th decile, D4 अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो what will be the value of D4? So D4 will be 4n/10, है ना, माइनस PCF/F into H। ठीक है, तो पहले हम D4 देखते हैं। D4 की क्लास क्या होगी, तो D4 will be lying in the class of size of 4n/10 ऑब्जर्वेशन, है ना। तो साइज ऑफ 4 into 100/10, ठीक है। तो 4 into 100/10 40, यस वेरी गुड। तो अब हमें अपनी टेबल में देखना है कि 40 कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो 40 को अगर हम चेक करें तो बताओ 40 को कवर कौन कर रहा है, ये वाली 30 क्लास 60 करेगा ना, Yes, ये थोड़ा ओवर राइटिंग, ठीक है। तो ये हमारी D4 की क्लास है, लोअर लिमिट है 50, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लोअर लिमिट है D4 की 50, अब फ्रीक्वेंसी होगी 30 और PCF होगी 30, PCF भी 30 है, वेरी गुड, ठीक है। तो F और PCF तो दोनों 30 है, F भी 30 है और PCF भी 30 है और H आपका 10 ही है, वो तो आपको पता है। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर एंड टेल मी द वैल्यूज प्लीज।
Ma'am, 53.33. Okay. So D4 is 50 plus 4n by 10 मतलब 40. ECF was 30. F भी 30 था और H से आपने मल्टीप्लाई करा तो 10 से मल्टीप्लाई हो गए. ठीक है. So this value is 50 plus 100 by 30. ठीक है. So how much is it? 53.33. Sonali? Yes, है ना? ma'am. तो इसका इंटरप्रिटेशन बताओ. फोर्थ डिसाइल 53.33 lakhs है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स है ना. तो 53.33 lakhs आपका प्रॉफिट है. तो क्या मतलब है इसका, इस डिसाइल की वैल्यू का? देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना. तो D4 आपका कहाँ, जैसे हम इसकी बात करें तो 1:9 हो गए ना. D1 की बात करें तो एक पार्ट ये हो गया और 9 पार्ट ये हो गए. 1:9. तो 4 की बात करें तो 4 और 6 हो जाएगा ना. टोटल 10 पार्ट्स है ना. बोलो है ना. Yes, अगर ma'am. D4 यहाँ पे होगी तो 4 पार्ट्स पहले होंगे, 6 बाद में होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि 40% ऑफ द कंपनीज आर हैविंग प्रॉफिट अप टू 53.33 है ना. कि 40% कंपनियां जो हैं आपके पास उनका प्रॉफिट 53.33 है. तो अगर 50 लाख से अबव वाले प्रॉफिट की कंपनीज को कंसिडर करना चाहते हो, ठीक है, फॉर सम कंपटीशन और फॉर सम अदर थिंग, तो आप देख सकते हो कि आप 50 लाख वाली 53 से अबव वाली कंपनीज को इनवाइट कर सकते हो, है ना. यस, क्लियर. Yes, जी ma'am. क्लियर है ना सबको. ठीक है. Yes, तो मीन मीडियन मोड, सॉरी मीन, आई एम वेरी सॉरी, मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल, ये हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. जिसमें से मीन आपकी बेस्ट एवरेज होती है. मीन बेस्ट एवरेज क्यों होती है? देखो हम पोजीशनल एवरेजेस की बात करते हैं. ठीक है. तो मीन के एक दो छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन मीन आपकी बेस्ट एवरेज होती है. ठीक है. क्वार्टाइल, ये मीडियन आपकी हर जो जितने भी एवरेजेस हैं सबका अपना सिग्निफिकेंस है. ठीक है बेटा. कौन सी कब यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब जैसे मीन है, मीन सारी वैल्यूज को यूज करता है एंड इट इज इजी टू कंप्यूट, है ना. लेकिन अगर आपके ओपन एंडेड इंटरवल्स हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूं 900 एंड मोर, है ना. अगर मैं आपको बोलूं कि मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 1000 तक चले जाते हैं हम, तो मोर देन 1000 उसने अपर लिमिट तो डिफाइन नहीं करी कि वी हैव टू गो टू 2000 और 3000 और 4000, है ना. सो इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट द इंटरवल. जैसे अगर मेरे 0 to 100 है, 100 to 200 है, 200 to 300 है, तो मुझे ऑब्वियसली ये पता है कि मुझे 1000 से आगे 100 और जाना है, क्योंकि मुझे उसको बैलेंस करने के लिए एच लाना पड़ेगा, है ना. एच मतलब स्टेप साइज. तो मीन की ड्रॉबैक्स कम है इन कंपैरिजन टू अदर एवरेजेस, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग है. जैसे मीन आपकी एक ऐसी एवरेज है विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर, बट इट इज ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम सिर्फ मीन पर रिलाय कर दें, है ना. जैसे अगर मुझे, देखो आई हैव 500 बल्ब्स. ठीक है. मैंने 500 बल्ब खरीदे और मुझे जो मैन्युफैक्चर है उसने बोला है कि इसकी जो मीन लाइफ है ना वो 150 घंटे तो चलेगा, है ना. तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि इसने बोला 150 घंटे चलेगा तो अब मैं आई कैन रिलाई कि ये तो गुड क्वालिटी बल्ब है. ऐसा हम रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ मीन पर. अब दूसरी कंपनी कह रही है कि उसका जो मीन है, एवरेज लाइफ है बल्ब की, वो है 145 आवर्स. तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये वाले बल्ब्स खराब चलेंगे. अब हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमें पता है कि 150 घंटे, तो कह रहा है एवरेज 150 घंटे चलेगी, या एवरेज इतने घंटे चलेगी. लेकिन हमने देखा कि उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कह रहा है 5 घंटे और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है सिर्फ 2.5 घंटे. तो आई वुड प्रेफर टू बाय फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर, है ना. क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जहां ज्यादा हो जाती है, वेरिएंस ज्यादा हो जाता है, वो लेस स्टेबल होता है डेटा. ठीक है. तो हम सिर्फ मीन पर रिलाई नहीं कर सकते, बट मीन इज द बेस्ट एवरेज टू यूज. ठीक है. अब हम मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन कब यूज करना है? मीडियन तो आपकी पोजीशनल एवरेज होती है.
लेकिन अगर आपका ओपन एंडेड इंटरवल है तब तो ये बेस्ट है, बेस्ट एवरेज है, क्योंकि ये सिर्फ मिडल वैल्यूज को कंसिडर करती है। सिमिलरली क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये भी पोजिशनल एवरेजेस हैं और इनके अपने अलग यूजेस हैं, है ना। देन वी हैव ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये भी एवरेजेस हैं। इनकी अलग रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। तो ये जब भी आपको ये चीजें चेक करनी होती है, यू गो टू ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये भी हम, इनकी भी एप्लीकेशंस हैं। इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल डिसीजंस में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा कब यूज करना है, ठीक है। सो यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एवरेज, ठीक है। जो मैंने नोट शेयर किए हैं उसमें सब कुछ है, एक बार आप पढ़ना, बाकी मैंने भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मोड, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बताओ किसी को याद है मोड क्या होता है? MODE, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इट इज मोड, है ना, ठीक है। सो व्हाट इज मोड, टेल मी। मैम जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड। हेलो मैम। मैम यस यस, आई वाज म्यूटेड, प्रणव बोलो। मैम गुड मॉर्निंग मैम। PT2 कंफर्म नहीं होगा ना आज? हाँ नहीं होगा, अभी मैं मीटिंग करती हूँ बाकी फैकल्टीज के साथ भी, क्योंकि देखो ये तो पहले से बताया हुआ था, और PT2 तो आपका वैसे भी ऑनलाइन मोड में ही होना था, क्योंकि आपका ऑफलाइन क्लासेस तो फर्स्ट अप्रैल से ही तो हुई है। सही पता बात नहीं ना। किन किन बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो अगर जब भी होगा, लेकिन होगा तो क्विज फॉर्म में, लैब में PT2 नहीं होगा, वो मैं बात कर लूंगी अभी मेंटर्स, अच्छा। अब बाकी मेंटर से। हाँ बोलो, और कोई डाउट है? नहीं नहीं, बस ये कंफर्म करके पूछना अच्छा, था। हाँ 12 बजे नहीं आज होगा। का पूछ रहा था मैं। ठीक है, हाँ थैंक यू आज वेरी नहीं है मच। बेटा, फिर आज नहीं होगा। तो चलो मोड बताओ, किसको याद है ये, व्हाट इज द मोड? देखो, मोड इज दैट वैल्यू व्हिच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। Mod is that value which is occurring maximum number of times, ठीक है, टाइम्स, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड वो वाली वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना, दैट इज बोलो हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एनी एग्जांपल? ठीक है, देखो, सपोज आई हैव अ स्टोर, ठीक है, एंड आई हैव अ शू स्टोर, ठीक है। अब हमारे पास शू साइजेस हैं 4, 5, 6, 6.5, 5.5 भी होता है, ठीक है, शू साइज 7, 7.5, ये दीज आर द शू साइजेस, एंड 8, ठीक है, 5.5, लेट अस टेक 5.5 आल्सो, ठीक है। तो 4 शू साइजेस जो हमारे स्टोर में सेल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 5 का है 18, 5.5 we have 19, 6 का है 35, ठीक है, 6.5 is 40, then you have, okay, 10, then we have 9 and 9, ठीक है। So tell me what is the which shoe size is having maximum frequency? These are the shoe sizes and these are the frequencies. बोलो 6.5. 6.5 जो शू साइज है वो सबसे ज्यादा, आई थिंक इट्स these are male sizes, ठीक है। तो 6.5 जो शू साइज है वो मैक्सिमम है, तो हमारे स्टोर में 6.5 6.5 जो शू है वो ज्यादा सेल होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द मोड फॉर दिस शू साइजेस इज 6.5। तो अब बताओ, डज इट मीन दैट आई शुड हैव मोर 6.5 साइज शूज इन माय स्टोर? बताओ, होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मुझे रखना चाहिए अपने स्टोर में? हाँ जी बोलो।
मोड का क्या, देखो मोड इज हैविंग, वेट बेटा वेट, मैम वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्लास? यस आ मैम। रही है मैम, आ अच्छा, रही है। मुझे नहीं आ रही थी किसी की भी आवाज। ओके, अब ये बताओ स्टोर में हमें 6.5 नंबर का शूज ज्यादा रखना चाहिए? रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यस और नो? क्या मैम? मैं पूछ रही हूँ, हम स्टोर में 6.5 साइज का शूज ज्यादा क्वांटिटी में रखना चाहिए या नहीं? 6.5 इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल। नहीं, नॉट यस मैम, बता यूनिवर्सल। दीजिए। हम यूनिवर्सल करें, आई एम टॉकिंग अबाउट मोड। जो हमारी मॉडल मैम स्क्रीन वैल्यू शेयर नहीं है, हो रही है। हाँ स्क्रीन मैंने ऑफ अभी रीशेयर कर रही हूँ। आप बस ये बताओ कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना यस चाहिए मैम। मैम। है ना? क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा सेल आउट होता है, मोड हमने क्यों निकाला? हमने ये देखने के लिए निकाला कि हमारी जो मैक्सिमम सेल होती है वो किस शू साइज की होती है। ठीक है, अब देखो इस वाले डेटा में तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था, ठीक है, कि 6.5 की ज्यादा सेल होती है। तो हमें क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो मोड हमारा 6.5 शू साइज इज द मोडल वैल्यू, तो हम उसको 6.5 साइज का शू ज्यादा रखेंगे। ठीक है, बट इन केस यू हैव you want to find the maximum marks, ठीक है, कितने? अब मेरे पास जो intervals हैं, I have 0 to 10, 10 to 20, you have 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, and we have suppose 2000 students, ठीक है, and I want to find maximum marks, ठीक है, so how can I find modal marks? बताओ। हमारे पास मार्क्स, हमें सिर्फ ये पता है कि 0 से 10 में 5 बच्चे हैं, 10 से 20 में वी हैव 15 स्टूडेंट्स, 20 to 30 में वी हैव 16 स्टूडेंट्स, 30 to 40 वी हैव 70 बहुत ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस, सपोज 27 स्टूडेंट्स, ठीक है, देन वी हैव 40 to 50, इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 116 270, ताकि 1000 कुछ बन जाए, ठीक है। 40 to 50 में वी हैव 350 स्टूडेंट्स, ठीक है, then we have 50 to 60 में we have 450 students, then 60 to 70% marks के we have only 250 students, ठीक है, then similarly we have 70 to 80% and 80 to 100%. Now I want to find the model marks,
ठीक है, क्योंकि आपके पास मार्क्स तो है नहीं, आपके पास सिर्फ ये रेंज है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना? आई वांट टू फाइंड मोड ऑफ द मार्क्स, ठीक है, और द मॉडल मार्क्स, तो आई हैव टू फाइंड द मोड। और ये आपका कौन सा डेटा है? दिस इज आल्सो ग्रुप डेटा, है ना? तो इस केस में आपको कैसे फाइंड आउट करना है मोड, वो मैं बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, मोड की वैल्यू, मोड का सिग्निफिकेंस क्लियर है ना आपको? यस, है ना? देखो, अगर लेकिन आपके पास दो दो मोड हो जाए तो फिर क्या करोगे? देखो, अगर आपका 6.5 साइज का शूज की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है, 40 फ्रीक्वेंसी है, और आपका शू साइज 7 की फ्रीक्वेंसी भी 40 है, तो व्हाट विल यू से? देयर आर टू मोड्स, 6.5 भी है और 7 भी है, है ना? So in that case, what will you say is the mode is ill-defined or the series is multimodal. ठीक है, the series is multimodal. ठीक है, तो in that case, how will you find the value of mode? So mode can be found when mode is ill-defined. Yeah, it can be found using the relationship between mean and median, that is 3 median minus 2 mean. ठीक है, तो जब भी आपका मोड इल डिफाइंड होगा, आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, आप मीन कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल यूज द फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सबको, है ना? क्लास क्लियर है? आवाज आ रही है ना सबको? क्लास जस्ट कंफर्म मैम प्लीज। इसको ग्रुप में यूज करना है। यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, इसको ग्रुप डेटा में यूज कर, नहीं अनग्रुप में भी कर सकते हो। अब मान लो आपने टेबल बनाई, आपने अपने जो भी आपने टेबल बनाई है उसमें आपके दो दो मोड आ रहे हैं, दो मतलब ऑब्जर्वेशंस है विच आर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, तो आप क्या करोगे? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, बट फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन यू विल हैव टू क्रिएट द क्लास इंटरवल्स, है ना? वो मैं बताऊंगी, एक क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का भी। ठीक है, तो जब भी आपका मोड इल डिफाइंड होगा और सीरीज आपकी मल्टी मॉडल या बाई मॉडल मतलब दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर तीन वैल्यूज है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसको ट्राई मॉडल नहीं बोलेंगे, उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अगर दो वैल्यूज की सेम है तो बाई मॉडल, ठीक है, और अगर मोर देन टू है तो इट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। ना देखो, हमारे पास जो मोड का फॉर्मूला है बेटा, मोड इज एल प्लस, ये मैं बताती हूँ कैसे करना है, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें L क्या होता है? L इज द अगेन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, और जो F0 है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class। ठीक है, और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, और H आपका वही क्लास इंटरवल स्टेप साइज, सॉरी, जो इंटरवल है क्लासेस का वही होगा। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट द मोड। ठीक है, yes, they are used pages। Okay, so how can we find the mode? So you are given the data of sales of 100 companies। अभी आपको sales का data given है। ठीक है, तो sales का data है आपके पास, you have 58 to 60, you have 60 to 62, 62 to 64, 64 to 66,
66, 68, 68 to 70, and then you have 70 to 72. ठीक है, these are the sales. So sales is again a variable, और जो उसकी frequency है, number of companies we have 12, 18, 25, 30, 10, 3 and 2. ठीक है, you have to calculate the mode. ठीक है, अब ये बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो आपको ये तो पता है कि ये सेल्स का डेटा है, ठीक है, तो 58 to 60 lakhs है, ये lakhs में गिवन है आपको, ठीक है, और ये 60 to 62 lakhs, 62 to 64 lakhs and so on. Now you want to find the model sales, है ना, तो अब हमें मॉडल वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू, है ना। अब हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है या नहीं? यस मैम। बोलो, इस 30 है ना, तो आपकी जो मॉडल क्लास है वो हो जाएगी 64 to 66, है ना, तो आप लिख देंगे बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 30, therefore model class is 64 to 66. ठीक है, so what will be the lower limit of model class? Will it be 64? ठीक है, अब देखो हम कैसे बनाते हैं, मैं बताती हूँ आपको। F1 हमेशा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 ऊपर वाली और F2 उसके सक्सीडिंग क्लास की। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, तो वैल्यू ऑफ द मोड विल बी L प्लस, ठीक है, दैट इज F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये अब बताएं, L लोअर लिमिट है 64, F1 is 30, F0 is 25, है ना, और F2 तो 2F1 2 into 30 minus F0 25 minus F2 10, and this thing is multiplied with H. H is 2, step size 2 है ना। अब आप मुझे आंसर बताएं प्लीज जल्दी से इसका। देखो ये 64 यहाँ 5 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 60 minus 35, 60 minus 35 will be 25. Tell me. Ma'am, 60.66. अच्छा 60.66 कैसे आ सकता है? 64 बेटा ऐड होगा सोनाली इसमें। ये गलत तो नहीं लिखा मैंने? 60 होगा ना, 60 minus 25 मैम minus 10. 64.4। ओके, तो 64.4 इज द मोड, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि हाईएस्ट सेल्स क्या है? हाईएस्ट सेल्स और द मॉडल सेल वैल्यू इज 64.4 lakhs, है ना। तो ये मॉडल सेल्स is 64.4 lakhs, ठीक है, डन, सिंपल, इजी था ना, फॉर्मूला तो सबसे आसान है। अब देखो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आप मोड नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, मतलब दो वैल्यूज, दो फ्रीक्वेंसीज है which are having there are two values which are having same frequencies, same highest frequencies, तब आप क्या करेंगे? You will use the formula 3 median minus 2 mean, and that is called empirical relationship between mean, median and mode. Okay, so that is 3 median minus 2 mean. तो ऐसे questions भी आते हैं and you are not able to find the mode. और एक ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो आपके पास आपने एक क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, मीडियन आप कर चुके हैं, so why to calculate mode separately? You can use the empirical relationship between the three, है ना, mode is equal to 3 median minus 2 mean, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना क्लास? हाँ जी, अब देखो Anna, I ask you people a very good question.
सी अगर आपके पास you have done a survey, ठीक है, survey on the preferences of housewives for kitchen slabs, ठीक है। तो आपने जब सर्वे किया तो आपको पता चला कि जो सर्वे है तो these housewives says that length of the kitchen slabs in meters, ठीक है, meters में they say कि more than 1 meter होनी चाहिए kitchen slab की length. Some ladies say it should be more than 1.5. Some say it should be more than 2, more than 2.5. Some says it should be more than 3.5. ठीक है, meters में होनी चाहिए, इससे ज्यादा। तो अब जो number of housewives है, आपने जब सर्वे किया तो number of housewives और housemakers, whatever you can, ठीक है, से नंबर ऑफ हाउसवाइफ जो कहती है कि मोर देन 1 मीटर तो होनी चाहिए लेंथ, वो है 50, ठीक है। मोर देन 1.5 होनी चाहिए, वो 46 है। मोर देन 2 40, मोर देन 2.5 42, मोर देन 3.5 10, मोर देन 3 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो सपोज मोर देन 3 ये है और मोर देन 3.5 है 3, ठीक है। सिर्फ 3 लेडीज ये कहती हैं, तो 1 1.5 2 2.5 3 और 3.5, ठीक है। तो आप ये बताओ, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। निपुन, एनी डाउट्स? निपुन बात करना शुरू कर देते हैं अनम्यूट करके। क्लास कैन यू म्यूट हिम? ओके, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. यस बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विजिबल है ना? अब देखो, नाउ वी हैव टू टेक द डिसीजन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, ओके। अब बताओ, अगर हमें एक डिसीजन लेना है कि हम कितने सेंटीमीटर की स्लैब बनाएं, किचन स्लैब, बताओ तो हम कैसे डिसाइड करें? व्हाट शुड वी कैलकुलेट? शुड वी कंसीडर मीन? देखो ये ना 44 होना चाहिए, आई थिंक ये 44 होगा, तो चेंज कर दूंगी मैं, ठीक है। अभी देखते हैं। देखो हमने क्या किया, सर्वे किया, हाउसवाइफ से डेटा लिया, कम से 50 सेज की 1 मीटर से ज्यादा तो होनी ही चाहिए किचन स्लैब की लेंथ, ठीक है। एक कुछ 46 सेज की 1.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, 44 आर सेइंग कि 2 मीटर से ज्यादा, ठीक है। और सिर्फ 3 ऐसी लेडीज हैं जो कह रही हैं 3.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए किचन स्लैब की लेंथ, ठीक है। तो क्या हम कैसे हम डिसाइड करें? एक मैन्युफैक्चरर को जब वो फ्लैट्स अपने बनवा रहा है, कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, तो कैसे वो किचन स्लैब की डिसाइड करे कि किचन स्लैब की कितनी लेंथ होनी चाहिए, so that most of the people would like to buy their flat, है ना, based on the preferences of kitchen slabs, ठीक है। तो बोलो, अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं तो उससे कोई फायदा होगा? अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन से तो हमें सिर्फ ये पता, मीन से हमें पता चलेगा कि एवरेज कितनी आती है ना। देखो एवरेज से हमें नहीं पता चलेगा कि हम कितने लेंथ की स्लैब बनाएं, ठीक है। क्लास विजिबल है ना आपको शीट? हाँ जी। Yes, ma'am. देखो मीडियन से भी नहीं पता चलेगा, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल से भी नहीं पता चलेगा। देखो इफ वी फाइंड द मोड, ठीक है, मोडल लेंथ ऑफ द किचन स्लैब, अगर मैं मोडल लेंथ ऑफ द किचन स्लैब निकाल लूं, है ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे मैक्सिमम इतनी, मतलब इतनी लेंथ रखनी चाहिए, है ना, so that is it visible? I think Ma'am, screen is not visible. screen not visible. Why?
एक मिनट, नो व्हाट्स हैपनिंग। आप विजिबल है? Yes, ma'am. एक मिनट रुको। इसकी लाइट अपने आप ऑफ हो रही है। ठीक है, देखो, हाँ दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब मैं कितनी लेंथ की किचन स्लैब, तो मैं मॉडल लेंथ निकाल लेती हूँ। ठीक है, उतनी हम लेंथ की किचन स्लैब बना देंगे और हमें फिर अपने फ्लैट्स सेल करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया वी आर मीटिंग, है ना? तो ठीक है, तो हमने मोड क्यों निकाला? क्योंकि मोड इज द मैक्सिमम प्रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेडीज, है ना? यही प्रेफरेंसेस ही तो हैं उनकी, उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस ही तो दी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडल वैल्यू निकाल रहे हैं। मोड आपका क्वालिटेटिव डेटा में हमेशा मोड यूज करना है। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट शू साइजेस, तो वो भी तो क्वालिटी है ना? ठीक है, एंड दिस इज लेंथ प्रेफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ किचन स्लैब्स। ठीक है, सो दैट इज आल्सो क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा में मोड इज वेरी यूजफुल। तो हाउ कैन यू फाइंड मोड इन दिस केस, टेल मी। तो देखो, more than 1, more than 1.5, more than 2.5, so first of all you have to convert this data into series, है ना? तो मैं क्या करूं, बोलो, more than 1 है 50, more than 1.5 46, तो हम 1 to 1.5 ले लें, 1.5 to 2, then we'll have 2 to 2.5, बोलो, then 2.5 to 3, स्क्रीन विजिबल है ना बच्चे? क्लास शीट्स विजिबल है? Yes, ma'am. See, okay, so this is the last question. Okay, so just tell me 3 to 3.5 and 3.5 and more. अच्छा देखो, हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि हम इसको 4 पे रिस्ट्रिक्ट करके छोड़ दें। हम यहाँ मोर लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका मोड है ना, वो भी सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहा है ना? नाउ टेल मी द फ्रीक्वेंसी प्लीज। यहाँ क्या होगा? 4 आएगा ये। देखो, मोर देन 1 50 लेडीज हैं, मोर देन 1.5 46 है, तो 1 to 1.5 कैसे निकालेंगे? तो मोर देन 1 है 50, ऐसे करके देख लो। ठीक है, और मोर देन 1.5 है आपके पास 46, तो आपको 1 से 1.5 निकालना है, तो 50 में से 46 माइनस कर देंगे, तो 4 आएगा। बोलो, अब ये कितना होगा? 2? हाँ जी, कौन बताएगा? बोलो, 2 प्लस, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो जल्दी जल्दी फिर। 50 माइनस 46 4, 46 माइनस 44 2, 44 माइनस 42, देन 2, ये 32 होगा। 2. हाँ, Yes, ma'am. 32, 7. फिर 7 और यहाँ 3, 7. इसका टोटल देखो 50 आ रहा है। पहले तो ये चेक करो, इसका टोटल 50 आ मैम रहा है। स्क्रीन विजिबल में नहीं है। हाँ, आई डोंट नो ये क्या हो क्या रहा है ये। एक मिनट रुको, मैं रीशेयर करती हूँ स्क्रीन, अपने आप लाइट ऑफ हो रही है फोन से, आई डोंट नो। Share video, start presenting. I think this should not happen again. फोन भी चार्ज हो रहा है। ठीक है, देखो अब ठीक है, मैम 50 है। 50 है, ठीक है। तो अब बताओ, मॉडल क्लास ये है 32, ये वाली क्लास है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 32 है, मॉडल क्लास है। दिस इज योर F0, दिस इज F1, दिस इज F2, तो व्हाट इज द मॉडल लेंथ? तो मॉडल लेंथ of the kitchen slab, or you can say mode, is equal to L. L है आपका 2.5, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, प्लस फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0, तो 32 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2F1, तो 2 इंटू 32 माइनस F0 माइनस F2, तो माइनस 2 माइनस 7 इंटू H, H आपका 0.5 है, ठीक है,
तो 0.5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से रिजल्ट। तो कितने लेंथ की हमें स्लैब बनानी चाहिए? देखो ये 64 माइनस 2 माइनस 7 इंटू 0.5। टेल मी प्लीज। कितने लेंथ की स्लैब बनानी चाहिए? यस, टेल मी आंसर। मैम 2.77। ओके, सॉरी। तो 2.77 मीटर्स की लेंथ आपको बनानी चाहिए किचन स्लैब में, है ना? देखो ये बात आपको मीडियन बता सकती थी या मीन बता सकता था ये बात आपको? नहीं, है ना? कि आप कैसे डिसाइड करो कि कितने लेंथ की आपको किचन स्लैब बनानी चाहिए कि आपके फ्लैट्स शुड बी कंसीडर्ड एज, आई मीन कंसीडर्ड 2 बाय, है ना? तो आपने देखो आप ये वाली प्रेफरेंसेस तो मीट कर ही रहे हो, ठीक है? तो 2.77 मीटर्स तो एटलीस्ट आपको बनानी चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि 2.77 मीटर्स आपको बनाना चाहिए, ठीक है? बोलो क्लियर है मोड, यस मैम। है ना? ठीक है, सो वी हैव डन मीन, मीडियन, मोड, क्वोटाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, कल हमारा लेक्चर नहीं है। मंडे को तो आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो मंडे हम कुछ और, ठीक है, ट्यूट होगा मंडे को, तो ट्यूट और लैब है। तो वेंसडे को जो हमारा एक लेक्चर का लास्ट टाइम आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैं देखती हूँ अगर वेंसडे अगर कोई स्लॉट मिलता है तो एक क्लास उस दिन और ले लेंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, वेरिएंस। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मीन पर आप अकेले रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन एवरेजेस। ठीक है, तो हम इसलिए वेरिएशन जरूर पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि डेटा कैसे डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो एक तो वो करेंगे, दूसरा वी हैव, उसके बाद स्क्यूनेस और कर्टोसिस है। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी द शेप ऑफ कर्व्स, ठीक है, शेप ऑफ द डेटा, फ्लैट है, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस करेंगे। वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। देन वी हैव, वो फिर हम डी सेक्शन पर आ जाएंगे, कर्व फिटिंग है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, मैं नोट्स अभी शेयर करती हूँ आपके साथ, ये वाले भी और पीडीएफ्स भी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, नो मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। एक मिनट मैं अटेंडेंस चेक कर लूँ कितने लोग नहीं हैं आज। फिर वेट, अच्छा, ये भृगु नहीं दिख रहा, भृगु बजाज, दीपांशु नहीं है, दिकराज नहीं है। दिकराज कहाँ है? ये तो बहुत टाइम से नहीं है। नमन और मैम नमन प्रेजेंट। नमन तो है, हाँ नमन तो है, ठीक है, ठीक है। दिकराज बहुत टाइम से नहीं है, ओके, ठीक है। मंडे को मिलते हैं हम लोग, ओके। कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अदरवाइज हम मंडे को मिलते हैं।